اے صوفی تجھے خبر نہیں راز عشق کی، آنا ہمارے پاس کبھی ہم بتائیں گے، ہم خود بتائیں گے تمہیں اپنی برائیاں، وہ اس لیے کہ لوگ تمہیں کم بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسرز لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ غزلیات کی تشریحات جو ہیں ان کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم میر درد کی غزل نمبر 1 کی تشریحات جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ پروفیسرز لیکچر کو ابھی آپ لوگوں نے ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آج کا پیغام یہ ہے کہ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ وقت سے بڑا تحفہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ایم اے اردو سال اول جو طالب علم ایم اے اردو کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک حقیر سی کوشش ہے کہ اس کو ہم ویڈیوز کی صورت میں اپلوڈ کر رہے ہیں جتنا سلیبس ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ولی دکنی کی 3 غزلیات بما تشریحات پیش کر چکے ہیں۔ اب ہم خواجہ میر درد کی غزلیات پیش کریں گے۔ ان کی تشریحات سے پہلے میں کچھ بات آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ میر درد کی شاعری کو دیکھتے ہی ان کے کلام کا مطالعہ کرنے سے ہی سب سے پہلے جو بات آپ لوگوں کو معلوم ہوگی وہ ہے صوفیانہ افکار۔ ان کی روح میں رچ بس گئے ہیں صوفیانہ کلام، صوفیانہ افکار۔ جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں ان کا جو اندازہ ہے وہ ذاتی ہے، یعنی اپنے اوپر آزمایا ہوا ہے، وہ روایتی نہیں ہے۔ پھر انداز بیاں اس قدر صاف ہے اور دل آویز ہے کہ طبیعت وجد کرنے لگتی ہے۔ اچھا، اب جو لوگ درد کو پسند کرتے ہیں وہ اپنی سہولت کے لیے درد کو مبصرین جو تبصرہ نگار ہیں وہ 2 بڑی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک صوفیانہ شاعری ہے اور ایک عاشقانہ شاعری ہے۔ ان کی 2 قسم ہیں بڑی شاعری کی، یہ جو ہم اب تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ آج میں صرف غزل نمبر 1 جو ہے اس کی شاعری اور تشریحات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی۔ انہوں نے یہ جو زبان استعمال کی ہے اس میں میر درد کی جو زبان ہے تقریباً وہ بھی پرانی اردو ہے، مطلب اس میں بھی پرانی اردو کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کو بھی سمجھنے کے لیے صرف تھوڑا سا غور کرنا ہوگا۔ آپ کو غزل نمبر 1 اور اس کا شعر نمبر جو 1 ہے وہ ذرا سنیں۔ وہ اس طرح سے ہے: جان پہ کھیلا ہوں میرا جگر دیکھنا، جان پہ کھیلا ہوں میرا جگر دیکھنا، جی نہ رہے یا رہے مجھ کو ادھر دیکھنا۔ اب اس میں شاعر میر درد کہتے ہیں کہ میرا حوصلہ دیکھو، میں عشق محبوب میں اپنی جان پر کھیل گیا ہوں، اب میں زندہ رہوں یا نہ رہوں لیکن دیکھنا مجھے اسی محبوب کی طرف ہے، یعنی میں اسی محبوب کی طرف ہی دیکھتا رہوں۔ وہ اس لیے کہ جب عاشق لوگ اپنے محبوب پر فدا ہوتے ہیں تو پھر عاشق کو کسی بات کی پرواہ یا بات کی غرض نہیں رہتی، اسی لیے شاعر یا عاشق چاہتا ہے کہ بس محبوب کا دیدار ہی کرتا رہے، اور محبوب کے لیے اس کی جان بھی چلی جائے تو اس کو فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر انسان میں حوصلہ ہوگا تو اس کو معلوم ہے کہ اس میں جان بھی جانے کا خدشہ ہے، یعنی عشق میں جان جانے کا خدشہ ہے، تبھی وہ اس میدان میں قدم رکھے گا، کیونکہ یہ کوئی آسان تھوڑا ہی ہے، یعنی آسان کام
नहीं है, इसमें जान जाने का खतरा है। अब इसमें कदम रख तो दिया है, अब कुछ ना कुछ हो जाए, पर मुझे अब अपने महबूब की ही तरफ देखना है, चाहे मेरी ज़िंदगी कैसी ही गुजरे, मैं रहूं या ना रहूं, सब कुछ मेरे महबूब के लिए ही है। दूसरा शेर देखें। घरचे वो खुर्शीद रो, नित है मेरे सामने, तो भी मुयस्सिर नहीं भर के नज़र देखना। गज़लियात में जो मुश्किल लफ्ज़ होंगे उनके साथ साथ मायने भी आप लोगों को बताए जाएंगे। जैसे कि खुर्शीद रो, खुर्शीद की तरह चमकने वाला, चमकदार चेहरे वाला, रोशन मुंह वाला, यानी खुर्शीद का मतलब होता है सूरज। मेरे सामने इतने चमकदार चेहरे वाला महबूब मौजूद है, यानी खुर्शीद रो मतलब सूरज की तरह चमकने वाला महबूब अगरचे मेरे सामने मौजूद है, लेकिन मैं इसकी तरफ नज़र भर कर भी नहीं देख सकता। शायर के कहने का ये मतलब है कि जिस तरह कोई इंसान सूरज की तरफ नहीं देख सकता, हमारी आंखें इसकी तेज शुआओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसी तरह महबूब का चेहरा भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आंखें इतनी तेज़ी जो रोशनी है उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और यही हाल मेरे महबूब की खूबसूरती और चमक दमक का है, इसको भी मैं नहीं देख सकता। यानी इतनी इन दो आँखों से कितना देखा जा सकता था। अगला शेर देखें, तीसरा। सो तू भी कोई दम न देख सका ए फलक, और तू या कुछ न था एक मगर देखना। शायर लोग कोई भी बात हो या मसला पेश आए तो इसका ज़िम्मा वो आसमान को ही ठहराते हैं। अब ये क्या, शायरी में तो ऐसा ही होता है। शायर ने इसमें कहा है कि शायर के नज़दीक यानी आशिक के नज़दीक दूसरों को देखना, मिलना जुलना और मोहब्बत का इजहार करना ही इंसानियत है, और दुख सुख में दूसरों के साथ आना, बांटना, काम आना इंसानियत कहलाता है, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में रखा ही क्या है। अब हसद करने वालों का क्या हाल है। हसद करने वालों में जो दो दिलों को किसी सूरत भी मिलता नहीं देख सकते, ज़माना मोहब्बत करने वालों का दुश्मन रहा है। अब आशिक को इस बात का भी दुख और शिकवा है कि आसमान से भी वो यही शिकवा कर रहे हैं। कहते हैं कि आसमां तुझसे भी ये गवारा ना हो सका कि महबूब की ज़ियारत कर लूँ। वो आसमान से शिकवा करते हैं कि ए आसमान, तूने मुझे ये काम ना करने दिया, यानी ज़ियारत ना करने दी, हमारे दरमियान जुदाई की दीवार खींच दी। जो मेरा महबूब था, अगर हम एक दूसरे को देख लेते तो आसमान या फलक को ये भी बात गवारा ना थी। अगला शेर देखें। ज़िक्र वफ़ा कीजिए इससे जो वाकिफ़ ना हो, कहते हो किससे ये तुम, टुक तो इधर देखना। इसमें शायर कहता है ज़िक्र वफ़ा कीजिए, मतलब कहते हैं कि मेरा महबूब बेवफ़ा और लापरवाह है। वफ़ा क्या चीज़ है वो जानता है, मगर फिर भी वो अनजान रहता है। ये भी इसकी एक अदा है जो आशिकों के लिए बहुत पुरकशिश और मरगूब है। वफ़ा का सबक इसको क्या दें जो सब जानता हो, सिर्फ अनजान बनकर अपनी तरफ रागिब या माइल करने के लिए वो कहता है ऐसा या ऐसा बनता है। चनाचे वो खुद कहते हैं कि वफ़ा का सबक इसको दें, चनाचे वो कहता है कि वफ़ा का सबक इसको दें जो ना जानता हो, बल्कि वो तो सब कुछ जानता है, और जो जानता है उसको हम क्या बताएं कि वफ़ा क्या चीज़ है। सिर्फ अनजान बनकर वो सिर्फ अपनी तरफ रागिब करना चाहता है। ये सब इस किस्म की हरकतें इसलिए करता है, वो कह रहे हैं कि जनाब ज़रा इधर तो देखिए,
वो जानबूझकर अनजान बना है और हमारी वफाओं का मजाक उड़ा रहा है, मजाक बना रहा है। जैसे मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद, हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। पांचवा शेर देखें। मिसले शरर तंगो चशम हस्ती बेबूद है, देख न सकता इसे टुक भी जिधर देखना। अब इसमें कुछ अल्फाज मायने देखें। मिसल होता है मिसाल, शर शर होता है यानी कि चिंगारी, चशम होता है आँख, और हस्ती बेबूद का मतलब होता है हस्ती को नफ़ी में मिला देना, यानी हस्ती की नफ़ी कर देना। अब इसकी तशरीह देखें। इस शेर में शायर कहता है कि दुनिया की बेइस्बाती और फ़ानी होने का जिक्र करता है और नापायदारी का भी जिक्र करता है। कहते हैं इंसान की दुनिया में ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। जिस तरह एक चिंगारी भड़क कर बुझती है, हम भी ये समझते हैं कि हमने बहुत ही लंबी ज़िंदगी पाई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उधर आई और उधर ख़त्म। यहाँ वो तमसीली अंदाज में कहते हैं कि जहान फ़ानी मिसाल अंधे की आँख जैसी है जो कहीं नहीं देख सकती। फिर ये आँख क्या है? फिर एक झरोखे की मानिंद रोशनी बेनाई से फ़ानी ज़िंदगी है। ये क्या है? कुछ भी नहीं, खाली ज़िंदगी है, खाली आँख की तरह। जो इसमें वो अंधे की आँख से इंसानी ज़िंदगी को तशबीह दे रहे हैं और कहीं भी नहीं देखता। आखिरी शेर देखें। नालाए दिल का असर देख लिया दर्द बस, जी में ना रह जाए ये आह भी कर देखना। इस तशरीह में देखें, अल्फाज मायने देखें ज़रा। नालाओ फरियाद आहो फिगा करना, ए दर्द तूने रोने का असर देख लिया है, अब फिर आंख भर कर देख ले, तुम्हारे दिल में ये हसरत ना रह जाए कि तूने रोने देने से अपने आशिक को मना नहीं किया। और फिर यूं उम्र भर आशिकों का काम होता है रोना धोना और आहोजारी करना, पर महबूब पर इसका कोई असर नहीं होता। पर इसके बावजूद भी वो आशिक मायूस नहीं होता, वो रो रो कर अपने महबूब से इल्तिजाएं करता रहता है। चनाचे फिर भी कहते हैं कि ए दर्द, तेरे दिल में जो हसरत ये ना रह जाए कि मैंने अपने महबूब की जो रो कर उसके नहीं मनाया, बल्कि कोई कसर इसमें नहीं छोड़ी, और ऐसा है और वो अलग बात है। अब तुम्हारे दिल में आहें हैं तो इस तरह कोशिश करते रहो और तुम्हारे दिल में जो हसरत है वो बाकी ना रहे कि तुम्हारी आहें रायगा गई हैं, फजूल गई हैं। दर्द की शायरी जो है वो इसलिए पसंद की जाती है कि इसमें सूफियाना रंग छलकता है। इनकी शायरी में सूफियाना शायरी ज़्यादा है। इश्किया मौज़ूआत पर भी उन्होंने कलम उठाया, लेकिन इनकी जो गज़ल इश्किया मौज़ूआत पर भी हैं और ज़्यादातर, लेकिन उसमें सूफियाना रंग जो है वो छाया हुआ है। ये ख्वाजा मीर दर्द की शायरी पर जो उसकी गज़ल थी उसकी तशरीहात हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसको पसंद करेंगे। वीडियोस लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।